Full form of AIDS. Good morning, all of you. So today we will discuss the topic AIDS. Starting from the definition of AIDS, we will see major effects of AIDS, how we can overcome AIDS, and what is the effect of AIDS in India. So starting from the definition of AIDS, full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome means collection of diseases. It is a cause to human by a virus called HIV. HIV is human immunodeficiency virus. अपना फेस This आपका virus, लाइट की तरफ करना चाहिए। दीक्षा स्टॉप कर रहा हूँ तो मैं लाइट आपका फेस की तरफ होना चाहिए। आपके फेस से एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा हूँ। फेस बिल्कुल ब्लैक आया हुआ आपका, आपके बैक में लाइट है, आपके फेस पे लाइट होनी चाहिए। बेटर नहीं है। आप दीवार की तरफ फेस करके बैठिए, कल से कंटिन्यू कीजिए विषय। कंटिन्यू। it is caused to human by a virus called HIV, human immunodeficiency virus. This virus attacks the human system of a body and makes the body completely weak. It can be caused by infected needles, blood, and from infected mother to her child. It is a communicated disease, which means transfer from one person to another person by some means. AIDS is basically not a curable disease, but its effects can be controlled through medicines and treatments. But there are specific minor symptoms of AIDS with a few weeks of HIV transmission, but major symptoms comes into force after months or years, which may also cause to death. International organizations like WHO, government campaigns, and NGO take initiatives constantly for making people aware of AIDS and HIV. Almost 32 million people have died due to breakout of AIDS epidemic. The highest number of people affected by AIDS belong to the continent of Africa. The only way to fight AIDS is to spread information and awareness among people. Different hospitals and clinics are also providing free medical checkups regarding AIDS. We as a human being must try to cooperate with the society and the patients affected with the AIDS and try to give them emotional support and care. People who are affected from the AIDS are not respected in society and everywhere they have to face humiliation. Second most important thing is to spread awareness about HIV AIDS disease. People having disease or symptoms of HIV is 30 not get सेकंड लेफ्ट। respected in the society. 30 सेकंड लेफ्ट। AIDS is not spread by hugging, dancing, or shaking hands with someone who is suffering from HIV. HIV is not spread through air, water, and insect bites. There are some major sources by which it can be affected by sharing contaminated needles from blood transfusions and from mothers to her child during टाइम इज pregnancy or delivery ओवर। through a breastfeeding. स्टॉप। Thank you, sir. टाइम इज ओवर। यू टेक 3 मिनट्स, लेकिन तुम 3 मिनट को मैनेज नहीं कर पाए, राइट? नहीं था, बस यही लास्ट था। यही लास्ट था। देखो देखो, आपने ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, लेकिन आप उसको एक ऑर्गेनाइज वे से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। आपने स्टार्टिंग में एक लाइन बोलनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सिर्फ एक लाइन ले लो मेरे से कि जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू डिवाइड माय टॉपिक इनटू 4 पार्ट। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 रीजन, नंबर 3 इफेक्ट, नंबर 4 सॉल्यूशंस। एंड इंट्रोडक्शन इज लाइक दिस, बोलो। नंबर 2 इट्स रीजन आर लाइक दिस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रीजन, नंबर 4 रीजन। its effect on us are like this, number 1, number 2, number 3, number 4, and its solutions are like this, number 1, number 2, number 3, number 4। आपको इस फॉर्मेट में अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो आपको ज्यादा बेटर रहता है। क्लियर? आप एक ऐसे से सुना गए, ऐसे नहीं सुना होता है। हमें अपनी नॉलेज नहीं दिखानी, वहां दिखानी है, लेकिन उसको इस मैनर से दिखाना है कि जीटीओ को हम देखें, दिखाएं। सब देखो, मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ,
सर सुनो ध्यान से, मैं इसके रीजन बता रहा हूँ। देखिए सर अब देखो मैं इसके इफेक्ट बता रहा हूँ क्या क्या इफेक्ट हमारे पड़ते हैं। वो भी नंबर 1 इफेक्ट ये पड़ता है सर, नंबर 2 इफेक्ट ये पड़ता है सर। सर इसके सॉल्यूशन ये होने चाहिए, नंबर 1 ये सॉल्यूशन होना चाहिए, नंबर इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कीजिए। लेकिन अपनी नॉलेज को इस फॉर्मेट में रखिए तो आपको ज्यादा ऑर्गेनाइज लगेगा। अगर आपके मार्क्स की बात करूँ 10 में से, तो 4 आउट ऑफ 10 मार्क्स में आपको उसमें लेता हूँ। अगर आपके 10 नंबर का टेस्ट है, चलिए ठीक है, बाकी सब ठीक था, स्पीड टेम्परामेंट सब कुछ ठीक था। लेकिन स्पीड में थोड़ा सा और फ्लुएंसी की मुझे रिक्वायरमेंट लगी, थोड़ी सी, बहुत हल्की सी। बाकी सब ठीक है, नॉट बैड। सफारी स्टार्ट, सॉरी सवाल नहीं का नंबर है, तो सफाली का नंबर है। सफाली स्टार्ट कर दो, 1 मिनट रुको मैं सेट कर लूँ। स्टार्ट। Okay, gentlemen, my topic is HIV/AIDS. माइक को पास रखें, माइक को पास रखें। I would to brief my topic in 4 parts, that is introduction, causes, effects, and last is solution. Now let's move towards its introduction. दैट्स गुड। HIV, also called human immunodeficiency virus, and AIDS, also called acquired immunodeficiency syndrome. Here syndrome means group of symptoms. It was first come in USA in 1981, and India it was first come in Chennai in 1986. HIV is HIV also called, it is a virus which directly attacks on the human immune system, and if it is not treated, it leads to the AIDS, which is called acquired immunodeficiency syndrome. Now let's move towards its causes. You can Not see. Let's move about causes. Number 1, number 2, number 3 से बोलना. Continue. You can get HIV. You can get HIV with the contact or with infected blood, semen, or vaginal fluids. Now let's move towards its first point. Most of the people get HIV while having unprotected sex with by someone who is having HIV. Second, another common way of getting HIV by sharing drug needles uh, with someone who is also having HIV, and the virus also can spread through uh, pregnancy time uh, pregnancy time of birth, and it also can transform from breastfeeding also. HIV doesn't survive well outside the body, so it can't be spread through casual contacts like kissing or sharing the drinking glasses with someone who is infected with HIV. Now let's move towards its affected. We all are familiar with HIV, but they do not know how it infect the body. HIV HIV destroyed CD4 cells, which also called T cells or helper cells, which are critical for the immune system. 30 seconds left. CD4 cells are responsible and for keeping people healthy and protecting them from other common diseases and infections. Now let's move towards its solutions. Abstain from sex or use protection while having. Never share needles or syringes or any injective equipment. If you are sexually active, then get tested. By acting aware, you can be a part of solution. थोड़ा सा और मैनेज करने की जरूरत है। जैसे हम बोल देते हैं टाइम 30 सेकंड लेफ्ट, जब हम बोलते हैं, आप चाहे कहीं पर भी हो, जब बोलते हैं 30 सेकंड लेफ्ट, तो फटाफट फटाफट कंक्लूजन पे मूव किया करो। आपने फटाफट फटाफट मूव किया कंक्लूजन के ऊपर, दैट्स गुड। और आई थिंक सो आपने कर दिया कंक्लूजन को। स्टार्टिंग थोड़ा टाइम ज्यादा ले गए, थोड़ा एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। 6 आउट ऑफ 10, गुड सफल, बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन था आपका। एंड बीच में एक दो जगह लड़खड़ा रहे तो वो नेचुरली है, उतना लड़खड़ा जाओगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलेगा। दीक्षा का बस फॉर्मेट ठीक नहीं था, अदरवाइज कोई अच्छे नंबर मिलते। स्वाति स्टार्ट। Okay, gentlemen, my topic is on AIDS. I would like to divide my topic into 4 parts, that is its introduction, causes, effects, and conclusion.
So first, I would like to start from its introduction. HIV/AIDS. HIV stands for the human immunodeficiency virus that causes the disease AIDS. Here, the word AIDS means acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome means collection of multiple infections that develop together and make to form the disease AIDS. There are different symptoms that are seen in the person who is infected from the HIV virus. These symptoms like fatigue, rapid weight loss, fever, diarrhea, typhoid, etc. Now, I would like to move to the causes of the AIDS. Its causes are like number one, AIDS is spread because of the weakening of the immune system. When the body's immune system weak, then automatically multiple infections entered into the human body. Number second, this disease widely spread due to the unprotected sexual contact with the infected person, whether the sexual contact is oral or vaginal. Number third, unborn or newborn baby also get infected from this virus from their mother. A newborn baby get this disease during the time of breastfeeding, and unborn baby get this disease during the time of deliveries. And another reason of the spreading HIV virus, that is a sharing of drug needles from the infected person to the healthy person. This is because of the carelessness of the doctors. So generally the question arises, is it safe to be with infected person? So answer to this question is very simple. Yes, it is very safe to be with infected person because this disease cannot spread by doing common activities of homes like sharing utensils, computer, telephones, water taps, etc. This disease also cannot spread by doing hugging, dry kissing, touching, etc. There are different effects of the AIDS that's seen in the person. Number one, the person who is infected from the HIV virus affect socially because the person is What is in unable left? to accept this thing in front of the society. And number second effect of this thing is that the internal organs damage very badly. Now I would like to move to the conclusion of the AIDS. This disease can be prevented by spreading awareness in the remote areas. Youth and the teenagers should show their greatest participation. Responsible persons of the society should also cooperate them or their child. So in this way, we can prevent this disease. Time is over. आपका भी मिसमैनेजमेंट रहा है स्वाति. इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया यार. 10-15 सेकंड का इंट्रोडक्शन बहुत होता है. 10-15 सेकंड बहुत थोड़े से होते हैं. इतने में आप एक वेट का सेंटेंस बनाते हो, इतने में इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है. ठीक है. और अपने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में इफेक्ट भी डाल दिए. इंट्रोडक्शन में आप इफेक्ट भी बोल के काफी सारे. आपका रीजंस भी बहुत लंबा रहा, काफी टाइम ले गया आपके रीजंस. इफेक्ट बोलने के लिए आपके पास टाइम नहीं था, तो आइडियाज भी आपके इफेक्ट आपने इंट्रोडक्शन में बोल दिए और सोल्यूशन आप बोल ही नहीं पाए. नॉलेज अच्छी थी लेकिन टाइम कम है रिप्रेजेंट करने के लिए. समझो जेंटलमैन, बात को समझिए. हमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है ही नहीं है, हमें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट देखना है. 3 मिनट में 10 से 15 सेकंड का इंट्रोडक्शन, लगभग 40-50 सेकंड के रीजन, 40-50 सेकंड के इसके इफेक्ट और 40-50 सेकंड का सॉल्यूशन चाहिए होता है. बस इतना सही चाहिए. बहुत ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है. ध्यान रखिएगा, अगर आपने नॉलेज ले भी लिया ना बहुत ज्यादा, तो वेस्टेज है, वहां पर रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे. इसलिए बेटर है कि हम थोड़ा तैयार करें, बढ़िया तैयार करें और फिर उसको प्रैक्टिस करें टाइम के अकॉर्डिंग. अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरी क्लास में आने से पहले, तो यहाँ पे आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको टाइम का आइडिया नहीं होगा. नहीं समझे आप बात नहीं? तो बच्चे से डर जाते हैं लेक्चर से कि बहुत ज्यादा पता नहीं क्या बोलूंगा मैं. बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, बहुत थोड़ा सा ही चाहिए होता है. लेकिन वो सिस्टमेटिकल बेसिक है कि हाँ मुझे इतना इतना नॉलेज रिप्रेजेंट करना होता है. इस टाइम का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. आपका नॉलेज ठीक था लेकिन टाइम फ्रेम आपका भी गड़बड़ हो गया, तो आपको भी नंबर मिलेंगे 5/6. अदरवाइज मैं आपको सबसे अच्छे नंबर देने वाला था. जो आपकी स्पीड थी बिल्कुल ठीक है, फ्लुएंसी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी. आई कॉन्टेक्ट वगैरह सब ठीक है. कहीं पे मुझे ऐसा बॉडी लैंग्वेज जेस्चर से नहीं पता चला कि आप कहीं पे डगमगा रहे हो. नाइस बात है.
कि फिर भी आपको 5 ही मार्क्स दूंगा, क्योंकि आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। तो अगली बार जब आओ तो एक एक मिनट का टाइम का अपना देख के रखना है कि मुझे कितना देर इंट्रोडक्शन बोला, 15-20 सेकंड का इंट्रोडक्शन, 10 सेकंड का, और फिर लगभग एक एक मिनट के 3 पार्ट हों बस। 2.5 मिनट तक आपको इंट्रो, रीजन, इफेक्ट 3 चीजें डिस्कस कर लेनी चाहिए। 2.5 मिनट में सुई जब पहुंचती है तो आपका इफेक्ट चल रहा होना चाहिए उस समय बढ़िया ढंग से। जैसे ही जब वो बोले कि 30 सेकंड लेफ्ट, ओके जेंटलमैन आई मूव टू कंक्लूजन, एक तरीका है। लास्ट के 30 सेकंड आपको कंक्लूजन पे बात करनी चाहिए। आपको टाइम स्पेन का आइडिया रखना पड़ेगा, वो तभी रख पाओगे जब आप अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे, अपनी वॉच आगे रख के। केवल तैयार करके मेरे पास आ जाओगे तो आप वो मान के चलिए कि आपका यहाँ पे एसएसबी रियल में हो रहा, आप सिलेक्शन सेंटर में बैठे हैं और वहाँ पे आपको लेक्चर दे रहे हैं। तो अगर आपकी ये परफॉर्मेंस है तो इसको आपको 5 नंबर मिले, जबकि आपको 7-8 तक नंबर इसमें मिल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्दिक से पहले दीपांशु। दीपांशु लेक्चर तैयार है आपका, होमवर्क किया है? नहीं सर, कल से लेक्चर तैयार करूंगा, आज मैंने आइडिया लिया है। आइडिया लिया तो आप सबसे लास्ट में बोले, लब के बाद आप बोलेंगे जरूर। चलिए हार्दिक से स्टार्ट करते हैं। हार्दिक स्टार्ट करो। ओए, इतना टाइम कहाँ लगा दिया? टाइम स्टार्ट हो गया अभी तुम्हारा, दोबारा से कर रहा हूँ। सेटिंग पहले रखो करके, चलो स्टार्ट करो। My topic is AIDS and I have divided this topic in 4 parts. तुम्हारे पास ईयरफोन नहीं है? है sir. चलो कंटिन्यू करो। I have divided my topic in 4 parts: introduction, causes, symptoms, and prevention. Introduction. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is a disease which is caused by a virus named HIV, human immunodeficiency virus. This virus, due to this virus, our immune system gets weak and our body becomes weak. And if we will talk about its causes, it is caused by ट्राई करो। it is caused by infected mother to his or her upcoming baby through placenta. Secondly, if we will talk about its cause, is it is also caused by infected needles, which is used by drugs addicts. And its last cause, if we will talk about, it is caused by now move to next point, its effect. if we will talk about its symptoms. Generally, it doesn't change directly if somebody will get HIV. It takes a few weeks or few months or sometimes years. Now, if we talk about its symptoms, in its symptoms, fever, dry cough, etc. If we will talk about its prevention, while donating the blood, it should be checked that the blood is pure or not. Secondly, if we will talk about its prevention, 30 seconds left. Secondly, we will talk about its prevention is pure needle should be provided to drug addicts. And if last prevention we will talk about is Okay, stop. अंडर प्रेशर हो आप हार्दिक, ठीक है? प्रेशर में थे ड्यूरिंग द लेक्चर एंड आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन दिस इज फर्स्ट पार्टिसिपेशन, दैट्स गुड। ठीक है, आई गिव यू 3 out of 10
वैसे तो 2 मिलने चाहिए थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि तूने फर्स्ट टाइम बोला है इसलिए। तो इसको और प्रैक्टिस करके आओ बेटा क्लास में, थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करके आइए क्लास के अंदर। ओके, अच्छा बोल सकते हो तुम में से, स्टेमिना है, पोटेंशियल है, तो दिख रहा है पोटेंशियल, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कम है इसलिए लड़खड़ा रहे हो। चलिए लव स्टार्ट करो। Good morning, gentlemen. Today I am standing in front of you to represent my views on my today's topic, which is AIDS. I have divided my topic in some subparts. So let's start. First of all, introduction about AIDS. What is AIDS? AIDS किस चिड़िया का नाम है? तो अब क्लोज the योर full form आइज, of AIDS is acquired in. क्लोज योर आइज एंड Sir? कंटिन्यू। आइज क्लोज करो, कंटिन्यू करो। So the full form of AIDS is acquired immunodeficiency virus. It is the last stage of HIV. HIV. The full form of HIV is human immunodeficiency virus. It is a disease in which most of the patients die. In most of the patients survive, but if they reach the last stage of HIV, that is AIDS, then saving the patient is almost impossible. तो अब आगे है effects of society, effects of AIDS on our society. AIDS का हमारे समाज पर गहरा प्रभाव है। अगर किसी व्यक्ति के एड्स के बारे में उसके आसपास रहने वालों को पता चल जाए तो ज्यादातर लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ मामलों में तो उसके घर वाले परिवार भी उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। वह व्यक्ति एड्स से मरने से पहले रोज मरता है। उसका अकेलापन, उसका दर्द, इस बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अब आगे है its reasons. According to some studies, there are several reasons of AIDS, such as contact with infected blood, seminal, vaginal tubes, etc. But most of the people get AIDS from having unprotected sex with the people who On your already eyes, has HIV. open your eyes, gentlemen, continue. पर कुछ मामलों में बच्चों को माँ के गर्भ से ही एड्स हो जाता है। और अब आगे है its symptoms. Symptoms of AIDS are recurring fever, diarrhea, swelling of lymph gland, rapid weight loss, etc. तो अब आखिरी में है its solutions. एड्स का वैसे तो कोई इलाज नहीं है, परंतु एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन से इसके बढ़ने के दर को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। 30 सेकंड लेफ्ट। कम किया जा सकता है और हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे avoid sex with the person who already has HIV, avoid unwanted pregnancies and sex, use condoms while having sex. Okay, stop. Time is over. हार्दिक सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? आवाज आ रही है? तैयारी अच्छी नहीं है बेटा। पीडीएफ पढ़ा ना? हाँ ना, मेरी पीडीएफ पढ़े थे आपने? हाँ ना, मेरी रिप्लाई करो एक बार मुझे। सर अभी 5 मिनट पहले पढ़े थे। क्या कहा बेटा? लास्ट 10-15 मिनट पहले। वीडियोस देखी थी आपने? देखो, जब आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं, सबसे पहले वीडियो सेक्शन में जाकर उसकी वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आपका एक माइंड मेकअप हो जाएगा टॉपिक के रिगार्डिंग। उसके बाद आप स्टडी मटेरियल में जाकर उसकी पीडीएफ पढ़ें, ठीक है? तो वीडियो भी देखना, पीडीएफ में सिर्फ तैयारी करनी है, और सारा पढ़ने के बाद अपना कंक्लूजन तैयार करना होता है कि मैं इंट्रोडक्शन क्या बोलूँ, रीजन क्या बोलूँ, इफेक्ट क्या बोलूँ, सोल्यूशन क्या बोलूँ। आपने पहले इफेक्ट बोल दिए, फिर बाद में रीजन बोल रहे हैं, ठीक है? तो आप ठीक नहीं से। सर, पहले इंट्रोडक्शन था। हाँ, पहले इंट्रोडक्शन था, फिर इफेक्ट थे, फिर रीजन था, और बाद में आप सोल्यूशन देने की। हाँ, फिर रीजंस, फिर सिम्टम्स और लास्ट में क्वेश्चंस। पहले रीजन और सिम्टम क्या होते हैं? सेम ही तो है। सिम्टम तो हमारे इफेक्ट हो गए, तो इफेक्ट आने चाहिए थे। आप रिकॉर्डिंग को नहीं सर, ध्यान दें। सिम्टम्स वो जो शरीर पे लक्षण होते हैं, और रीजंस वो किन कारणों से हुआ है। तो सिम्टम का मतलब कोई इफेक्ट ही तो है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर। सिम्टम मींस इफेक्ट, है ना? सिम्टम मींस व्हाट? इफेक्ट। इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा।
आपको और तैयारी करने की जरूरत है और इंग्लिश में बोलने की ट्राई कीजिए। अभी आपके पास टाइम है, हम लोग इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई डाउट लगेगा तो हमारे पास टाइम है इंग्लिश इंप्रूव करने का। ये तो है नहीं आपका 10 दिन बाद इंटरव्यू, आपका 2 साल के बाद इंटरव्यू आना है। तो यू हैव 2 years टू इंप्रूव योरसेल्फ। तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश इन दिस क्लास, ओके। अभी से बोलना स्टार्ट करेंगे तो 4-5 महीने में बढ़िया इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। दैट्स गुड। 2 मार्क्स दूंगा आपको मैं, एक ज्यादा है वैसे, 1 मिलना चाहिए था, दोनों को एक एक एक्स्ट्रा दिया कि तुमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, फर्स्ट टाइम के हिसाब से बढ़िया। चलिए दीपांशु, कंटिन्यू, स्टार्ट। Gentlemen, today my topic is AIDS, and I would like to divide my topic into 4 parts: introduction, vision, effects, and solution. शाबाश। So let's move to first point: introduction. Introduction of AIDS. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome, and HIV, it's virus. It stands for a human immunodeficiency virus. And the region of second point of AIDS, region of AIDS. शाबाश। Symptoms like a dry cough, fatigue, and etc. Causes of AIDS through infected blood, infected syringe, and infected breast milk of mother, and unsafe sex are causes of AIDS. That's good. Let's move towards effects of AIDS. Effects सरिया आगे नहीं आ रही। भाई कभी शाबाश, इफेक्ट क्या होता है? वेट लूज हो जाता है ना? शाबाश शाबाश जी। वेट लूज एंड ड्राई कफ एक्सेट्रा। बॉडी वीक हो जाती है, ठीक है। लव ने जैसे बताया था कि रिलेशंस में गैप आ जाता है, लोग हेट करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और जो पर्सन है वो अपने आप को आइसोलेटेड, अलग थलग सा महसूस करना, लाइफ की जो मेन स्ट्रीम उससे कटा हुआ महसूस करता है, और वो डिप्रेशन में जा सकता है। एक ऐसा आदमी जिसे सब लोग हेट करें, नफरत करें, दूरियां रखें, तो क्या होगा? डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। ये इसके इफेक्ट है। तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन बताइए। Let's move towards a solution of its a solution. Prevent from infected syringe, and next is शाबाश, हम ट्राई करो, गुड। use safety equipment while sex, and ओके स्टॉप। एड्स की क्या सोल्यूशन होगी? सबसे डाटा पहले क्या है? स्टॉप हो गया, डाटा क्या है? ओके स्टॉप। क्या सोल्यूशन होने चाहिए इसके? नंबर 1, सबसे पहले लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर करना चाहिए। आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग अवेलेबल हैं जिनको सेक्स एजुकेशन की नॉलेज नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट इस पोर्शन को स्कूल में और कॉलेज में एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करे। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे इसके बीमारी को दूर करने के लिए स्टेप्स ले चुकी है। हर जगह हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, आप उसकी फ्री चेकअप करवा सकते हैं। नंबर 3, हमें यूज सिरिंज नीडल्स का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नंबर 4, हमें जैसे ही बेबी बोर्न होता है तो उससे पहले मदर के चेकअप डॉक्टर ऑलरेडी करते ही हैं, बट प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस की है। गाँव में आज भी ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं ग्रामीण इलाकों में जहाँ इस चीज को एक से अवेयर नहीं है, और इसका सबसे ज्यादा सोल्यूशन और तो यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए, इसकी जानकारी ही इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। और जब तक गवर्नमेंट के साथ साथ आम जनता भी इस बात को ध्यान से समझेगी नहीं, तो तब तक इस बीमारी को दूर किया भी नहीं जा सकता हमारे समाज से। लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को इसके लिए अवेयर करें, एजुकेशन सिस्टम में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट की डेफिनेटली मल्टी पर्पज स्कीम जो आती है उनके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इस तरीके से आप नॉलेज कम होते हुए भी सोल्यूशन को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देखो, आप लोगों ने जो नॉलेज जो रिप्रेजेंट की वो लगभग किताबी ज्ञान आप लोगों ने ज्यादा यहाँ पे
सॉल्व किया है सभी लोगों ने, ठीक है ना। कैमरा ऑन रखो भाई, सभी अपना अपना कैमरा ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, सबका ऑन है, ठीक है। गैलरी व्यू में चलते हैं। शेफाली हार्दिक दिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कैमरा तो ऑन आपका दिख नहीं रहेगा। तो मैं इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हूँ। देखो इसमें दीपांशु आपको हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ेगी बेटा इसमें आपको, ठीक है। आप होमवर्क करके आइए क्लास में, नहीं तो पैर लड़खड़ा जाएंगे क्लास में आपके। तो आपको मैं नंबर दूंगा सिर्फ 2/10, वो भी मार्क करके आपने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क यूज किया बोलने के लिए, ठीक है। बाकी पॉजेस तो थे, प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, आपको प्रिपेयर कर होके आना चाहिए क्लास के अंदर। चलिए अभी दीपांशु तुम्हारे पास देखो टाइम कितना, कब आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू कब बेटा? 10 जनवरी को। 10 जनवरी। हमारे पास मान के चलो कि पूरा नवंबर है, दिसंबर है, नवंबर दिसंबर, और अभी अक्टूबर भी मान के चलो कि 10 दिन हमारे पास है। तो आपके पास दिन है 30 60 10 70 70 डेज आपके पास है। तो आप इंग्लिश और हिंदी अगर लैंग्वेज यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप इंग्लिश प्रॉपर मत यूज कीजिए, क्योंकि हम 7-8 दिन में इंग्लिश उस अप टू द मार्क नहीं ला पाएंगे, ठीक है ना। तो इससे बेटर है कि हम अभी से प्रैक्टिस करते हैं हिंदी इंग्लिश में बोलने की। जितना आप कंफर्टेबल इंग्लिश बोल सके इंग्लिश बोलिए। बीच में जब हिंदी का लगे कि नहीं अब आ रहा टोन, इंग्लिश इफेक्ट हो रही है मेरी, मैं बोल नहीं पाऊंगा इंग्लिश में, तब हिंदी पे आ जाएगी। जब लगे कि फिर कंफर्टेबल है फिर दोबारा इंग्लिश में आ जाइए। तो हिंदी इंग्लिश इस तरह से आप मिक्स लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आपको उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि 60 से 70 डेज में हम इंग्लिश को प्रॉपर फ्लुएंसी में ला पाए मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब आप अंडर प्रेशर हो जाओगे तो रजत वाला हाल हो जाएगा अपना भी। रजत प्रैक्टिस इंग्लिश में करता है लेकिन वो अंडर प्रेशर होता है, जब इंग्लिश में बोलता है ना वो अंडर प्रेशर रहता है, उसको टाइम लगेगा उस फ्लुएंसी को पकड़ने में, और वो एफर्ट कर भी रहा है काफी। आज तो वो शादी में रसगुल्ले खा रहा है, 2 दिन खाएगा, कल भी खाए उसने, आज भी खाए, इसलिए आज वो क्लास में नहीं आया। लेकिन वो एफर्ट कर रहा है, उसको 4-5-6 महीने बाद वो टोन पकड़ पाएगा इंग्लिश की, जिसमें जब वो बिना फेयर के बोल पाए। तो अभी हम अगर इंग्लिश में फोकस रखेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश में मिक्स रखो, मैक्सिमम इंग्लिश रखो, थोड़ा सा हिंदी भी रखो, ताकि आपकी फ्लुएंसी इफेक्ट ना हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर ऑफ एक्सप्रेशन ही है एसएसटी के अंदर, नॉलेज बाद में आती है। तो अगर हमारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन अगर गड़बड़ाया हुआ है तो ऑफिसर समझ जाएगा यू आर अंडर प्रेशर, यू आर नॉट एबल टू स्पीक सिंगल सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ ग्रुप, देन हाउ ही कैन सिलेक्ट यू, क्यों सिलेक्ट करेगा हमें। तो अगर हम अच्छे खुल के बोलेंगे, आप हिंदी में बोलो, सारा कोई दिक्कत नहीं है, खुल के बोलो। फिर नॉलेज की बात आती है कि हमें कितना टॉपिक का नॉलेज है। किताबी ज्ञान को पढ़ो, वो नोट तो पढ़ने के लिए दिए हैं, लेकिन अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करो, कॉमन सेंस को एक्सप्रेस करो। एड्स क्या है? एक बीमारी है, ठीक है। उसका डेफिनेशन बता दिया, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है ना, ये HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या बोलते हो, ऐसा कुछ किताब में लिखा हुआ है जो, ठीक है वो बता दो, इतना सा बहुत है। दिस इज एड्स, हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ज्यादा टाइम मत लगाओ। व्हाट आर द इट्स रीजन? नंबर 1 लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है लोगों के पास।